as the title suggests, how to prepare for NIFT 2027. So if you are in class 12, next year 2027 May, you will be giving the design entrance exam of NIFT, National Institute of Fashion Technology. अगर आप क्लास 9th में हो और 11th में हो और आपको ये वीडियो दिख रही है और आप चाहते हो कि आप एक सक्सेसफुल डिज़ाइनर बनो, सो हियर इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट जो आप इस कॉलेज में जा सकते हो, एंड फ्रॉम हियर डेफिनेटली योर फ्यूचर इज़ ब्राइट. नाउ अगर आप एक डिज़ाइन एस्पिरेंट हो तो मैं ये कहूँगी कि आपने बहुत सारे इंस्टाग्राम में ऐसे चैनल्स फॉलो किए होंगे जिनमें से NID, NIFT दिल्ली, NIFT मुंबई, भोपाल, शिलोंग, कश्मीर, देयर आर so many campuses out there. तो आपने अगर इनको फॉलो नहीं किया है तो ज़रूर फॉलो करना. आपको वहाँ पे उनकी लाइफ दिखेगी, उनके कैंपस दिखेंगे, what type of work they do, what type of work designers do आपको दिखेगा, and there are lot more areas which you can explore. So if you're in class 9th and 11th, आप प्लीज़ एक्सप्लोर कर सकते हो, डिसाइड कर सकते हो कि आपका करियर क्या हो सकता है. Now, how to prepare this I am going to discuss in my upcoming slides. But before that, अगर आपने इस साल भी निफ्ट का एंट्रेंस एग्जाम दिया है and you are feeling dicey कि आप क्रैक करोगे नहीं करोगे, गैट में क्या मार्क्स आए होंगे, so ये सब कुछ हम आज डिस्कस करेंगे. पूरा जो पैटर्न है निफ्ट का वो हम डिस्कस करेंगे. Now, सबसे पहले what is NIFT? National Institute of Fashion Technology, guys. If you want to pursue your career in designing, now designing से मेरा मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप अपने आप को लिमिट कर दो सिर्फ फैशन डिजाइन तक, सिर्फ टेक्सटाइल डिजाइन तक. देयर इज अ लॉट मोर स्ट्रीम विच यू कैन एक्सप्लोर. You can explore fashion interiors. Yes, it is a new stream which has been added in NIFT. You can explore leather designing, you can explore accessory designing, you can explore fashion communication, under which you can explore branding, advertising, UX, UI and many more. Why it is India's topmost institute? Now I will suggest on that note, please start following NIFT's page. You will get to see many things which students do, how they do the problem solving thing, how they improvise their ideas into the product or maybe textile or maybe any UX UI. Who should aim for NIFT? Now if like you are good at not only sketching and drawing, but if you're good at observing things, if you think that in any object you are seeing any kind of problem, and if you have that ability to think and draw, that you can do improvisations in that very design, then definitely you should aim for NIFT. NIFT doesn't only talk about fashion technology, like NIFT अगर हम पूरा नाम देखें तो फैशन टेक्नोलॉजी, तो सिर्फ फैशन नहीं है, फैशन इन टर्म्स ऑफ ब्रांडिंग, एडवर्टाइजिंग, कम्युनिकेटिंग, लेदर, एक्सेसरीज, प्रोडक्ट, सब कुछ है. फैशन यहाँ पे लिमिट नहीं होता सिर्फ अपैरल्स तक. देयर आर अ लॉट मोर स्ट्रीम्स जो कि आप एक्सप्लोर कर सकते हो. एंड फॉर दैट इफ यू वांट यू कैन विजिट www.nift.ac.in, which is the official website of NIFT, where you'll get to see all the streams. What courses does it offer? Now here I would like to tell you there are bachelor's in design, master's in design, master's in fashion management, and there is bachelor's in fashion technology, BF Tech, MF Tech सब है यहाँ पे. Let's talk about bachelor's in design. Bachelor's in design के अंदर there are 7 streams now. Fashion design, textile design, accessory design, fashion communication, there is leather design, there is fashion interiors. So these are the 7 streams which are present in NIFT. Now these streams ये कहाँ पे हैं? ये आपके different campuses में मिलेंगे. Like अगर आपके ranks अच्छे आते हैं, निफ्ट दिल्ली मिलता है आपको, तो all the 6 streams you are going to get. Fashion interiors अभी कुछ ही places पे शुरू हुआ है, तो वो आपको उनकी website पे officially दिख जाएगा. So ये बहुत सारे courses offer करते हैं. Masters in design है, Masters in fashion management है. अगर आपने bachelor's complete कर लिया है, definitely you can go for masters. So
बहुत सारे कोर्सेज है जो ये ऑफर कर रहा है, आप ऑफिशियली इस वेबसाइट पे देख सकते हो। मूविंग फॉरवर्ड, लेट मी टेल यू, let's understand the structure of stage 1 and 2, क्योंकि ये जो पूरा सेशन है ये आपको एक्सप्लेन करने के लिए है। तो अगर आप एक न्यू एस्पिरेंट हो तो कैसे अप्रोच करते हैं, कैसे NIFT में आप कैसे इसको क्रैक कर सकते हो, क्या स्टेजेस है, हम उसकी बात करेंगे। स्टेज 1 इज द फर्स्ट स्टेज, जो कि दिसंबर में फॉर्म आएगा एंड फरवरी में आपके एडमिट कार्ड्स आ जाएंगे, जनवरी एंड में आ सकता है। एंड देन you'll have the first round which is your general ability test part and creative part. The exam is of 5 hours, but मैं ये सिर्फ कहने को बोल रही हूँ 5 घंटे, आपका पूरा दिन लग जाता है because 2.5 hours का या 2 hours का ब्रेक भी आपको मिलता है। And in the GAT part you are asked with the questions from your aptitude part which is from maths हो गया, reasoning हो गया, GK हो गया, English हो गया, comprehensions हो गए। तो ये basic questions है guys, ये आपने क्लास 10th 9th 8th में बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है, लेकिन अगेन कुछ लोगों का मैथ्स खराब होता है या अच्छा नहीं है या आप वीक हो, तो you can always come for the mentorship। तो फर्स्ट राउंड जब आप क्रैक करते हो, क्रिएटिव आपका 100 मार्क्स का होता है, 100 मार्क्स का आपका एप्टीट्यूड होता है फॉर बैचलर्स इन डिजाइन। मास्टर्स इन डिजाइन के लिए अगेन आपका पूरा का पूरा एप्टीट्यूड इज ऑफ 120 मार्क्स एंड क्रिएटिव इज ऑफ 100 मार्क्स। सिमिलरली MFM के लिए इट्स ऑफ 150 मार्क्स। तो ये सारे उनके प्रोस्पेक्टस में दिया हुआ है, उनके वेबसाइट पे दिया हुआ है। स्टिल आई विल हैव अ सेपरेट वीडियो ऑन दैट, क्योंकि अगर मैंने बिल्कुल यहाँ पे अभी उसके बारे में बात की तो दिस वीडियो विल गो आधा घंटा मैं बोलते रह जाऊंगी। सो स्टेज 1, जब आप स्टेज 1 क्रैक कर लेते हो, यू आर इनवाइटेड फॉर द स्टेज 2 विच इज इन बैचलर्स ऑफ इन डिजाइन। आपको सिचुएशन टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा एंड अगर आप मास्टर्स के लिए जा रहे हो आपको बुलाया जाएगा इंटरव्यू राउंड के लिए। देयर इज नो पोर्टफोलियो इन NIFT। सो यहाँ पे पहले आप ये दिमाग से निकाल दो कि यू विल हैव टू प्रिपेयर अ पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियोज नहीं है। तो दैट इज स्टेज 1 एंड स्टेज 2। बेसिकली मास्टर्स में इंटरव्यू होता है और बैचलर्स में सिचुएशन टेस्ट होती है। दैट वाज द स्ट्रक्चर। What NIFT actually looks for? NIFT क्या देखता है आपके पेपर में? तो पहले मैं आपको एक बार ये बता दूं कि GAT is of 30% वेटेज। 30% में अगर आप वेटेज में अगर आप अबव 18% 19% ले आते हो, जो कि एंड के रिजल्ट में इट विल बी शोन, तो देर आर चांसेस कि आपको अच्छे रैंक मिलेंगे। हाउ डू यू थिंक इट मैटर्स मोर देन हाउ वेल यू ड्रॉ? कितना अच्छा बना रहे हो, कितना सुंदर बना रहे हो, दैट इज द वन थिंग कि आपके स्किल्स अच्छे हैं, लेकिन आप कितना इम्पैक्टफुल बना रहे हो, आपने टारगेट ऑडियंस के बारे में सोचा है कि नहीं, आपने डेमोग्राफिक्स के बारे में सोचा है कि नहीं, दैट शोज कि आपने सोचा कैसे है। एंड देन इम्प्लीमेंटिंग योर डिजाइन इज द सेकेंड थिंग। सो क्या मैटर करता है? आपका ऑब्जर्वेशन स्किल मैटर करता है, आपका IQ मैटर करता है। आप कोई डिजाइन अगर बना रहे हो तो उसकी बैक स्टोरी क्या है कि आप वहां उस डिजाइन तक पहुंचे हो, व्हाट इज द इंस्पिरेशन बिहाइंड इट, दीज ऑल थिंग्स मैटर। एंड जब आप इसको लिखते हो, बनाते हो, तो आप सिस्टमैटिकली स्टेप बाय स्टेप इस चीज को दिखाते हो, देन ओनली यू गेट मार्क्स। बिकॉज इन क्रिएटिव पार्ट इट्स ऑफ 100 मार्क्स एंड देयर आर 3 क्वेश्चंस आस्क्ड, 30 + 30 और 40। तो ऐसे आपके 3 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो डेफिनेटली आपका व्हाट यू थिंक मैटर्स मोर देन व्हाट हाउ वेल यू ड्रॉ, क्योंकि वो स्किल्स तो आ जाएंगे, वो प्रैक्टिस के साथ आ जाएगा। वो आप कॉलेज में एंटर करोगे तो आपको कॉलेज भी वो चीज सिखा देगा। नाउ व्हाट कुड बी योर प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी फॉर CAT? इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। आपकी ड्राइंग स्किल्स, हाउ वेल यू ड्रॉ, हाउ वेल योर लाइन क्वालिटीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। ह्यूमन फिगर्स, ह्यूमन प्रोपोर्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है। एक फिजिकल एनवायरनमेंट में अगर कोई कॉम्पोजिशन एंड पर्सपेक्टिव बना रहे हो तो उसमें उसका हाइट वेट जो भी आप बना रहे हो वो आप कैसे बना रहे हो, क्या प्रोपोर्शंस आपने ध्यान रखा है, दैट मैटर्स। Object and compositions, that matters again in the form of perspective, in the form of composition। अगर एक चेयर बना रहे हैं तो वॉल के कंपैरिजन में उसका क्या प्रोपोर्शन होगा, that matters। तो ये सब कुछ आपको प्रैक्टिस करना है। and if you want you can come for the online classes and offline classes। we are based in Delhi and we have students across India and not only these topics but there are n number of basic topics जो आपको प्रैक्टिस करने होते हैं if you want to crack an IFT।
पर्सपेक्टिव, क्रिएटिविटी प्रैक्टिस, डेली स्केचिंग इज अ मस्ट। आप घर पे हो, आप बाहर जाओ, आप पार्क में बैठे हो, आपको कुछ भी दिख रहा है, लाइक इफ यू आर सीइंग मे बी फ्रूट सेलर और समवन सिटिंग ऑन द बेंच, तो आप क्या उसको फ्री हैंड स्केचिंग कर सकते हो और कितनी क्विकली कर सकते हो। तो ये सब कुछ स्किल पे डिपेंड करता है। थीम बेस्ड ड्राइंग, दैट इज डिजाइन इंस्पिरेशन ऑल्सो, स्टोरी टेलिंग थ्रू विजुअल्स, एंड देन पोस्टर डिजाइन, प्रोडक्ट डिजाइन, मेमोरी ड्राइंग, प्रोसेस ड्राइंग, जेस्चर्स, एक्सप्रेशंस, comic strips, design inspiration. So these all are the important topics for 2027 and ये analysis की गई है previous year के papers देख करके। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो please go to the playlist and you'll find the videos where I have shown the solved examples of the PYQs. Moving forward, preparation strategy for GAT. Now we all know that there are 4 parts in aptitude: quantitative, English comprehension, general knowledge, logical reasoning. General knowledge आपको पता होगा, on my channel Avinash sir's video is there for GK and he has I think delivered almost all the topics for like GK, general awareness, and there are the questions which have directly come from there. तो GK तो मैं आपको ये बोलूँगी कि थोड़ा टाइम निकालो और वीडियोस देख लो। अगर आपके पास पढ़ने का टाइम नहीं है न्यूज़पेपर और आप नहीं ढूंढ सकते तो बस वीडियोस देख लो। आपको 50 क्वेश्चंस का पूरा वीडियो, 100 क्वेश्चंस का पूरा सेट आपको मिल जाएगा हमारे चैनल पे। इट इज़ प्रीटी मच एंगेजिंग एंड यू विल हैव कॉन्फिडेंस जब आप वो वीडियोस देखोगे कि आप कितना सॉल्व कर पा रहे हो, और मल्टीपल टाइम्स आप देख सकते हो, आप अपने नोट्स बना सकते हो। जनरल नॉलेज, लॉजिकल रीजनिंग डेफिनेटली बहुत टफ नहीं होता है मैथ्स की तरह, तो लॉजिकल रीजनिंग की लेकिन प्रैक्टिस करनी बहुत ज़रूरी है क्योंकि आप कम टाइम में कैसे सॉल्यूशंस निकाल सकते हो। इसके टिप्स क्या है? न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो, आप मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस कर सकते हो, बट मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस आप अभी नहीं कर सकते क्योंकि आपको अभी सारे टॉपिक्स पहले क्लियर आउट करने पड़ेंगे, उसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, एंड देन एट द एंड लाइक इन द मंथ ऑफ दिसंबर, इन द मंथ ऑफ जनवरी आप मॉक टेस्ट दे सकते हो। एंड देन ऑफ कोर्स इम्प्रूव वोकैबुलरी। इंग्लिश बहुत स्कोरिंग एरिया है, तो अगर आपका कॉम्प्रीहेंशन एंड इंग्लिश लैंग्वेज, आप मीनिंग्स, वर्ड के मीनिंग्स, वर्ड के ऑपोजिट्स, एरर फाइंडिंग, इन सबकी प्रैक्टिस आप अच्छे से कर लो क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। नाउ स्टडी प्लान की अगर हम बात करें, अगर आप 1 ईयर के लिए कर रहे हो, अभी बेस्ट टाइम है ये प्रैक्टिस स्टार्ट करने का। फेज 1 to 4 मंथ्स के लिए रख सकते हो, जहाँ पे आप बेसिक्स ऑफ ड्राइंग, ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, प्रोपोर्शंस में कैसे बनाते हैं, इसकी प्रैक्टिस कीजिए। आइसोमेट्रिक में कैसे बनाते हैं, 3D में डेप्थ कैसे दिखाते हैं, हल्का शेड करके देख सकते हो आप। निफ्ट में कभी कभी ये लिखा हुआ आता है कि यू हैव टू यूज कलर्स, तो कलर्स के थ्रू उसको प्रेजेंट करना, 3D में दिखाना, डेप्थ दिखाना, शेडिंग, इमर्जिंग दिखाना, वो सारी चीजें आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। स्टार्ट विद जीके प्लस वोकैबुलरी। जीके में मैंने आपको बताया, आप वीडियोस देख सकते हो। वोकैबुलरी में यू कैन ऑलवेज ऑर्डर फ्रॉम आवर वेबसाइट द स्टडी मटेरियल। पूरा स्टडी मटेरियल है निफ्ट और एनआईडी का, आप अच्छे से वहाँ से तैयारी कर सकते हो। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस कम फ्रॉम देयर, तो मैंने बहुत एनालाइज करके वो चीज़ें पूरे क्वेश्चंस एंड पूरा स्टडी मटेरियल बनाया है। यू विल थैंक मी लेटर। अगर आप वहाँ से कर लेते हो तो डेफिनेटली आप मुझे थैंक करोगे, क्योंकि हर साल बच्चे कई बारी वो पढ़ करके बहुत कॉन्फिडेंट भी होते हैं और एग्जाम में भी आता भी है। फेज 2 मंथ 5 to 8 प्रैक्टिस क्रिएटिव क्वेश्चंस, मतलब जितने भी टॉपिक्स मैंने अभी आपको बताए थे वो एक करके आप उन क्वेश्चंस, उन टॉपिक्स की क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हो, एंड 1-2 आप मॉक टेस्ट बिगिन कर सकते हो जस्ट टू सी द टाइमिंग कि 3 घंटे में आप कितना सॉल्व कर पाते हो। फेज 3 इज 9 to 12 फुल लेंथ मॉक्स को सॉल्व कीजिए। सिचुएशन टेस्ट की प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपका फर्स्ट राउंड हो चुका है, आप सेकेंड राउंड की प्रैक्टिस आपका रिजल्ट निकलने के पहले भी कर सकते हो, बिकॉज अगर आपने ठीक ठाक परफॉर्म किया है आपका फर्स्ट राउंड क्लियर हो जाएगा। Now, on that note, consistency beats talent. ये जो फेज है, ये मैं यही बोलना चाहूँगी कि अगर आप कंसिस्टेंट हो अपनी चीज़ों को लेकर के, अगर आज आपकी स्किल्स अच्छी नहीं है पर अगर आप कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस कर रहे हो, डेफिनेटली आपके अंदर
वो चीज़ें आ जाएंगी, आप बहुत अच्छे से स्किल डेवलप कर लोगे, आप बहुत अच्छे से कोई चीज़ बना पाओगे। एक होता है ड्राइंग अच्छी होना और एक होता है आइडियाज़ अच्छी होना। जिसकी ड्राइंग अच्छी है और आइडियाज़ लैक कर रहा है उसके लिए भी बहुत डिफिकल्ट हो जाता है क्रैक करना, और जिसके आइडियाज़ बहुत अच्छे हैं पर उसको बनाना ही नहीं आता, रिप्रेजेंट ही नहीं आता, तो टैलेंट होकर के भी कोई फायदा नहीं है। सो डेली रूटीन आपका क्या होना चाहिए? इट शुड बी 1 आवर स्केचिंग इज मस्ट, आपको करना ही है, आप चाहे जहां पे भी बैठे हो। 1 आवर कैट प्रैक्टिस होना ही चाहिए, 1 आवर गैट प्रिपरेशन। नाउ इन दैट हो सकता है कि आप 1 घंटा मैथ्स कर लो, हो सकता है आप 1 घंटा किसी दिन रीजनिंग कर लो, किसी दिन 1 घंटे आप कॉम्प्रीहेंशंस कर लो। 30 मिनट्स ऑब्जर्वेशन एक्सरसाइज। पहले अगर आप किसी मार्केट प्लेस में हो या आप कहीं जा रहे हो तो आप 30 मिनट्स ऑब्जर्व करो सिचुएशन को। ना फोन से रिकॉर्ड करने की जरूरत है, ना स्केचिंग करने की जरूरत है, पहले सिर्फ ऑब्जर्व करो और उसको फिर 30 मिनट्स के बाद कोशिश करो उसको रिकॉल करके उसको बनाने की। दैट इज द बेस्ट प्रैक्टिस ऑफ ऑब्जर्वेशन। अगर आपने ये कर लिया आप डेफिनेटली अपने क्रिएटिव स्किल्स को इंप्रूव कर पाओगे। नाउ क्या नहीं करना है आपको? कॉमन मिस्टेक्स जो बच्चे करते हैं, Behance पे जा रहे हैं, Pinterest पे जा रहे हैं, कोई आइडिया देख ले रहे हैं, उसको बहुत अच्छे से ड्रॉ कर ले रहे हैं, इससे काम नहीं होगा। सो कॉपिंग Pinterest आइडिया से प्लीज नो, a big no for that. Ignoring गैट को अगर इग्नोर कर लेते हो और सोचते हो कि क्रिएटिव करके आप अच्छे मार्क्स ले आओगे और आप क्रैक कर लोगे NIFT, तो ऐसा नहीं होगा। आप हो सकता है क्रैक कर लो लेकिन आपका रैंक इतना बिलो आएगा कि फिर जो कॉलेज में आप जाना चाहते हो आपको वो नहीं मिलेगा। सो पुअर टाइम मैनेजमेंट, ये नहीं कि आपने स्टार्ट किया है काम, अब आप घूम रहे हो, फिर रहे हो, खा रहे हो और फिर आपका जब टाइम मिला आपने वो काम किया, इससे आपका कभी टाइम मैनेजमेंट नहीं होगा। सो प्लीज स्टार्ट सिटिंग फॉर कंटिन्यूअस 1 आवर और 2 आवर, और जो चीज स्टार्ट किया है उसको कंप्लीट करने की कोशिश कीजिए। नॉट प्रैक्टिसिंग सिचुएशन टेस्ट, अभी मत करो, अभी मैं भी बोलूंगी अभी मत करो, लेकिन जैसे ही आपका फर्स्ट राउंड कंप्लीट होता है प्लीज स्टार्ट विथ योर मटेरियल हैंडलिंग, क्योंकि बाद में रिजल्ट निकलने के बाद ओनली 10-15 डेज का वो टाइम देते हैं एंड फिर आप प्रिपेयर्ड नहीं होगे तो आप ऑब्वियसली 20% वेटेज है उसकी एंड आपका रैंक लो चला जाएगा। लैक ऑफ ओरिजिनलिटी, हर चीज देख करके बनाना नहीं है, दिमाग से आपको सोचना है, इमेजिन करना है, और वो तभी किया जा सकता है जब आपकी ऑब्जर्वेशंस अच्छी होंगी एंड देन प्रेजेंटेड। So that's how you should avoid these mistakes. Now, डिजाइन इज नॉट टैलेंट, इट्स प्रैक्टिस। ऐसा नहीं है अगर मैं किसी को देख के बोल रही हूँ इसकी ड्राइंग बहुत अच्छी है ये तो है ही टैलेंटेड, ऐसा नहीं होता है। इट इज ओनली प्रैक्टिस। आप जितनी प्रैक्टिस करोगे आपके स्किल्स उतने रिफाइंड हो जाएंगे, और जितना रिफाइनमेंट आपके स्किल्स में आएगा आपके आइडियाज उतने ही अच्छे से प्रेजेंट हो पाएंगे फॉर एनी क्लाइंट, फॉर एनीबडी टू सी एंड ऑब्जर्व। क्योंकि क्या होता है एग्जाम में हम बना करके आ जाते हैं, आप वहां खड़े नहीं हो उसको एक्सप्लेन करने के लिए। सो इट इज अ मस्ट कि आपकी स्किल्स भी अच्छी होनी चाहिए और आपकी ऑब्जर्वेशन स्किल्स भी अच्छी होनी चाहिए। दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो गाइज। सो मैं यही कहना चाहूंगी इट इज जस्ट अ स्टार्ट। अभी 2026 है, 1 साल है आपके पास, आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो। जैसे भी मैंने आपको रोड मैप बताया है प्लीज स्टार्ट विद दैट। इफ यू फेस एनी प्रॉब्लम और डिफिकल्टी यू कैन कम टू द कमेंट सेक्शन, पुट अप योर क्वेरीज देयर, आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू ऑल। ऑल्सो इफ यू नीड ऑनलाइन क्लासेस और ऑफलाइन, वी आर बेस्ड इन दिल्ली। ऑनलाइन आप हमारा इंस्टाग्राम चेक कर सकते हो विच इज @SS Design House and you'll get to see how the classes are conducted in hybrid mode. So बहुत अच्छे ऑनलाइन क्लासेस होते हैं। अगर आप अपने घर से बैठ करके आप पढ़ पा रहे हो, आपका जाने आने का टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है, आई थिंक दैट इज द मस्ट आज के टाइम में। सो दैट्स इट फ्रॉम टुडेज वीडियो। इफ यू हैव एनी क्वेरीज यू कैन कम टू द कमेंट सेक्शन, पुट अप योर क्वेरीज देयर, आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू। दिस इज योर मेंटर संयुक्ता सिंह signing off. Till then, take care. Bye bye.